Hello children, we are discussing chapter 11, force and pressure. In our previous videos, we have discussed what is force, what are the effects of the force. After that, we are discussing the types of forces. The forces are of two kinds. The one is contact forces. The forces in which the two bodies in which the force is present are in direct contact with each other. Those kind of forces are known as contact forces. In my previous video, I explained you about the contact and the non-contact forces, बच्चे, and in detail we have discussed about the contact forces. ऐसी forces बच्चे जिसमें दो ऑब्जेक्ट जिसके बीच में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, those objects are in direct contact. वो सीधे कांटेक्ट में एक दूसरे के, तभी फोर्स लगता है बच्चे, and that force is known as, that type of force is known as contact force. The other one is non-contact, that we are going to discuss it, but just before that, first we'll revise the three kind of contact forces. The first is muscular force. The force exerted by the muscles over the body. The force exerted due to the muscles is known as muscular force. To push something, to pick something, the force which we are exerting is muscular force. While walking, while running, we are applying a force by our muscles, and that kind of force is known as muscular force. The second one is mechanical force. Mechanical means machine. Whensoever a force is generated, is exerted by the help of a machine. Whensoever a work is done by the help of a machine, that is known as mechanical force. The force which is required to move a machine or to work for a machine is known as mechanical force. For mechanical force, we require various kind of fuels. Next, we have discussed frictional force. About this, you have a complete chapter. After this chapter, we are going to discuss that, the friction. The force which opposes the motion is known as frictional force or force of friction. If we roll a ball over the ground, after some time the ball rolling over, slowing down and ultimately stops. अगर हम एक सरफेस पर एक ग्राउंड पर बॉल रोल कर देते हैं बच्चे, तो बॉल धीरे 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 रोल करता 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 अल्टीमेटली रुक जाता है. क्यों? Because the surface exert a force opposite to the direction of motion. जो सरफेस है वो मोशन के ऑपोजिट एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स की वजह से वो बॉल जो है वो धीरे धीरे होता 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 अल्टीमेटली रुक जाता है. दिस इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. इसे फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं बच्चे. फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द रेगुलरिटीज एंड इररेगुलरिटीज, दैट इज ऑन द स्मूथनेस ऑफ अ सरफेस. मोर स्मूदर अ सरफेस इज, the friction is less, and if a surface has more irregularities, more roughness, then the friction will be more. बच्चे, अगर एक सरफेस पर रफनेस, उस पर अगर irregularities ज्यादा होंगी तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और अगर एक सरफेस स्मूथ होगा तो उस पर फ्रिक्शन कम होगा. Now बच्चे, moving ahead, in this video we will discuss the non-contact forces. As their name indicates, the forces which do not occur due to the contact, due to the direct contact between the objects. So the forces which are exerted, which comes in action, even the two objects on which the forces are there, they are not in the direct contact of each other. वो forces बच्चे जो तब लगती हैं, जब तब एक्शन में आती हैं जब दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में वो फोर्स है, वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में चाहे हो चाहे ना हो. दैट इज नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. द फोर्सेस व्हिच एक्ट इवन when the two objects are not in the direct contact of each other. They are in direct contact of each other. They are far apart from each other. Even then, if those forces are exerted, that is known as non-contact forces. There are also three kinds. The first one is magnetic force. In class 6, you have discussed the chapter Fun with Magnets. In that chapter, you had studied about the magnet. What is a magnet? It is a substance which can attract
iron, cobalt, nickel and steel towards it. That is known as a magnet. मैग्नेट बच्चों वो सब्सटेंस है जो आयरन को, स्टील को, कोबाल्ट को, निकल को, मैग्नेटिक मटेरियल्स को बेसिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. In the same chapter, you have discussed that every magnet has two poles. One is north pole and another one is south pole. आपने पढ़ा ना बच्चों, एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. Two same poles repel each other. नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे and two opposite poles attract each other. North and south attract each other. तो नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और नॉर्थ और साउथ, साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट. सो दैट मींस देयर इज अ फोर्स, वेदर इट इज ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन. फोर्स तो है ना, तो दैट फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. Force exerted by a magnet on another magnet or on the other poles of the magnet, as well as or on the other magnetic materials like cobalt, iron, nickel, steel, that force is known as a magnetic force. अगर बच्चों हम दो मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल को ले जा रहे हैं तो फोर्स लगेगा, वो दोनों पोल्स एक दूसरे से दूर चले जाएंगे. दूर जाना मतलब धकेला गया, they are pushing each other. That's why the force is there. If north and south poles are bring closer towards the magnet, then they get attracted. Attracted means they pull each other. So any push or pull is a force ना. So बच्चों, मैग्नेट बच्चे एक दूसरी मैग्नेट के पोल्स पर या फिर किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर जो फोर्स लगाती है, that force is known as a magnetic force. A magnet can attract iron pins towards itself. That is magnetic force. For example, we have a sawdust, and in the sawdust the carpenter drops his iron nails. sawdust समझते हो, लकड़ी का बुरादा है. उत्तर कारपेंटर काम कर रहा है घर पे लकड़ी का, उसने क्या किया गलती से, जो अपनी लोहे की कीलें थी वो sawdust में गिर गई. उससे हम उससे निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे बेटा? हम एक मैग्नेट लाएंगे. क्यों? मैग्नेट उस पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा. मैग्नेट उन आयरन नेल्स को अट्रैक्ट कर लेगा, बट sawdust को अट्रैक्ट नहीं करेगा. एंड दैट्स हाउ वी कैन सेपरेट द आयरन नेल्स फ्रॉम द sawdust because of the magnetic force. The next one is electrostatic force. Electro means electric current, means charges. Polarity. Charges are of two kinds, positive charge and negative charge. Same बच्चे जैसे मैग्नेट में था, same poles repel each other. यहाँ आएगा पुत्र same charges repel each other. Positive और नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल. मैग्नेट में था ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. इलेक्ट्रोस्टैटिक में आएगा ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे, पर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? हमेशा रिपेल करेंगे. These kind of forces are known as electrostatic forces. The forces exerted by a charged body, by a charged object on another charged or uncharged object, that is known as electrostatic force. अब बच्चे यहाँ एक टर्म आ रही है अनचार्ज ऑब्जेक्ट. अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे कैसे एक चार्ज ऑब्जेक्ट फोर्स लगा देगा जब उस पर उत्तर चार्ज ही नहीं है? तो बच्चे ये तुम्हें आगे 11th क्लास में, हायर क्लासेस में अगर आप साइंस लेंगे वहां पढ़ाया जाएगा. पोलैरिटी इसका रीजन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसका रीजन है. बच्चे पोटेंशियल होता है जिससे एक चार्ज बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को भी क्या कर सकती है? चार्ज कर सकती है. इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं बच्चे, दैट यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस. सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट इज नोन एज electrostatic force. We'll discuss a small activity in which we'll prove that electrostatic forces do not require direct contact. For that we'll take a stand. On that stand we hang a thread, and with that thread we hang a pipe. A straw basically, a plastic straw हमने इससे hang कर दिया. Then we'll take another straw and rub that straw with this straw. हम क्या करते हैं? हम दोनों straws को एक दूसरे से रब कर देते हैं.
बच्चे क्या होता है, जब हम उससे रब करेंगे तो रबिंग से एक फोर्स, एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो दोनों प्लास्टिक की जो स्ट्रॉज है उन पे चार्ज आ गया बच्चे। आफ्टर दैट इफ वी ब्रिंग द अदर स्ट्रॉ नियर टू इट, we'll observe that it will reflect। मान लो बच्चे ये एक हैंग कर रही है स्ट्रॉ, और दूसरी मैं जब स्ट्रॉ इसके पास ला रहा हूं तो ये स्ट्रॉ क्या कर जाएगी, इस तरह से बेंड कर जाएगी। मतलब ये क्या हो रही है पुत्र, इससे रिपेल हो रही है। दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस वजह से हो रहा है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हो रहा है। क्यों? बोथ द प्लास्टिक स्ट्रॉज हैव अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। जब हम उससे रब करेंगे तो प्लास्टिक स्ट्रॉ पे, प्लास्टिक मटेरियल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों पे पॉजिटिव आएगा बच्चों। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो प्लास्टिक स्ट्रॉ और प्लास्टिक स्ट्रॉ क्या करने के लिए? एक दूसरे को रिपेल। अदर एग्जांपल दैट यू मस्ट हैव प्रैक्टिस इन योर लाइफ, आपने जरूर किया होगा ऐसा। आपको सिखाया गया होगा बच्चे, किसी बच्चे ने आओ मैं तुझे मैजिक दिखाता हूं। क्या मैजिक? दैट पर्सन टेक द पीसेस ऑफ पेपर and rub the plastic scale or comb over the hair, and when that comb or that plastic scale brings near the piece of paper, pieces of paper get stick to it, and we say, oh jadoo jadoo jadoo। It's not a magic beta, it's all about the electrostatic force of attraction। क्या किया एक्चुअली बच्चे? उसने बच्चे जब उस कॉम्ब या उस जो प्लास्टिक स्केल है उसे जब बालों में रगड़ा तो रबिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उस पर चार्ज क्रिएट हो गया। पीसेस ऑफ पेपर को जब हमने टीयर किया तो रबिंग की वजह से, टीयरिंग में जब घिस रहा है वो पीस एक से दूसरे से, उसमें चार्ज क्रिएट हो गया। दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं एंड ऑपोजिट चार्जेस गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। तो पीस ऑफ पेपर और जो प्लास्टिक स्केल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, बिकॉज ऑन वन देयर इज नेगेटिव चार्ज एंड ऑन अनदर देयर इज पॉजिटिव चार्ज। सो दिस काइंड ऑफ फोर्सेस आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। The forces which comes in action, which acts when a charged body comes near to another charged body, that is known as electrostatic forces. Next we'll discuss the third, gravitational force. It is also known as gravitation. Newton discovered this phenomenon, and according to Newton, every object on the planet Earth as well as a celestial, what do you mean by celestial object? The objects which are present in the outer space, the planets, stars, asteroids, all these are celestial objects। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो इस धरती पर चाहे इस धरती के बाहर, every object attract each other। मैं इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये मार्कर मुझे, मैं इस बोर्ड को अट्रैक्ट कर रहा हूं, ये बोर्ड मुझे। आपके पास एक कॉपी पेन पड़ा है, आप कॉपी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉपी आपको। पेन कॉपी को अट्रैक्ट कर रहा है, टू कॉपी पेन। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इन ऑल दीज फोर्सेस व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज द ओनली फोर्स व्हिच ओनली एक्ट्स फॉर अट्रैक्शन। Gravitational force does not have anything to do with repulsion. It is the force of attraction only. तो अगर आपसे कोई पूछे एकमात्र ऐसा फोर्स बताओ, it is the only force which stands for attraction only, which does not have stand for repulsion, that is known as gravitational force. So the force with which an object present on Earth or any celestial object get attracted towards each other, that is known as gravitational force। हम प्लैनेट की तरफ अट्रैक्टेड है, प्लैनेट हमारी तरफ, सन हमारी तरफ अट्रैक्टेड है, हम सन की तरफ। अगर आपके साथ आपके रूम में कोई बैठा है तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और वो आपकी तरफ, बट फिर भी हम मूव क्यों नहीं कर रहे? द फोर्स इज वेरी लेस। इन क्लास 9 यू विल स्टडी दैट, कि जब हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम प्लेनेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लेनेट हमारी तरफ, तो हम उधर क्यों नहीं चले जा रहे, हम उड़ क्यों नहीं जा रहे? That you will study in class 9 बच्चे। Newton discovered that, you must have heard the story that Newton was sleeping under the tree or sitting under the tree, an apple falls near it and he discovered the gravity। सेब गिरता है उसके पास और वो देखता है कि क्यों गिरा ये,
और उसने ग्रेविटी की खोज कर दी। अर्थ अट्रैक्ट्स एनीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। व्हेन आई थ्रो दिस मार्कर इन द एयर इट विल रिटर्न बैक। जब ये ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद मेरे पास वापस आ रहा है बच्चे। क्यों? जब मैंने इसे ऊपर फेंका, मैंने एक फोर्स लगाया, मस्कुलर फोर्स। बट ग्रेविटी, द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स its center, and due to that gravity this object falls down, everything falls down. So the gravitational force of earth on any object is known as gravity. अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने एक स्पेसिफिक टर्म नाम दिया, एंड दैट स्पेसिफिक टर्म इज नोन एज ग्रेविटी। और स्पेसिफिक टर्म को क्या बोलते हैं? Gravity बोलते हैं। So the force of attraction exerted, the force of gravitation exerted by Earth on any other object is known as force of gravity, or simply gravity. Next we'll discuss pressure. What is pressure? It is a physical quantity which measures the effect of force on a given unit of area. प्रेशर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है बच्चे जो फोर्स मापती है एक गिवन यूनिट ऑफ एरिया पर, एक फिक्स एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। दैट इज मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी इज नोन एज प्रेशर। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इट? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। एक गिवन यूनिट ऑफ एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज नोन एज प्रेशर। सो मैथमेटिकल फॉर्मूला होते हैं ना बच्चे, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर क्या हो गया? फोर्स पर यूनिट एरिया मींस डिवाइडेड बाय एरिया। सो प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय P, फोर्स इज बाय F एंड एरिया इज बाय A। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। दैट इज नॉट द डेफिनेशन। द डेफिनेशन इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। मैथमेटिकली प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो बच्चे अगर एरिया ज्यादा होगा, इफ एरिया इज मोर देन प्रेशर इज लेस। अगर फोर्स सेम है तो बच्चे फोर्स को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना। अगर एरिया बड़ा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। क्या एग्जांपल? मेरे पास दो आयरन नेल है, एक इस तरह से है और एक ये है। ये शार्प एज्ड है, पॉइंटेड है, और ये ब्लंट एंड है, चौड़ी है। जो बच्चे शार्प एज्ड है वो बड़ी आसानी से अंदर चली जाएगी वॉल के। क्यों? वाई? एरिया इज लेस। इफ एरिया इज लेस द प्रेशर इज। अगर एरिया कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा। एंड इफ एरिया इज मोर द प्रेशर इज लेस। एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम है। ठीक है बच्चों? तो ये है बच्चों प्रेशर। तो प्रेशर किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है? फर्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे। मैग्नीट्यूड मींस अमाउंट। एंड द सेकेंड, द एरिया ऑन विच द प्रेशर इज एक्सर्टेड। वो एरिया जिस पर प्रेशर लग रहा है। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द यूनिट ऑफ प्रेशर। एज वी नो, every physical quantity has a unit. लेंथ की मीटर है, डिस्टेंस की मीटर है, स्पीड की मीटर पर सेकंड है, isn't it? टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड्स है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब है, एरिया की मीटर स्क्वायर है, मास की किलोग्राम है। तो likewise there is a unit for pressure as well. For unit of pressure we'll find the other units, we'll put the values of them and then we'll reach the unit of pressure. Unit of pressure will be equals to unit of force divided by unit of area. यही होगा ना बेटा? देखो प्रेशर की यूनिट निकालनी है, ऊपर आ रहा है फोर्स और नीचे आ रहा है एरिया, तो यूनिट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ एरिया। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, एसआई यूनिट, और एरिया की एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। There was a scientist whose name was
Pascal, Pascal. He said the Newton per meter square is known by my name. उसने कहा नहीं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं चलेगा, इसे मेरे नाम पर रखा जाए. And the unit of pressure is Pascal, represented by capital P small a. The unit of pressure is Pascal. 1 Pascal कब होगा? जब 1 न्यूटन फोर्स हो, एरिया कितना हो? 1 मीटर स्क्वायर. 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा. तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 पास्कल इफ 1 न्यूटन फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 1 मीटर स्क्वायर एरिया. अगर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है कितने एरिया पर? 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर. देन द प्रेशर इज सेड टू बी 1 पास्कल. दैट इज SI यूनिट ऑफ प्रेशर is known as Pascal.